Hello everyone, welcome to Chokta Academy. Dear aspirants, my name is Bhanu Gleria and we are covering the most important current affair for HS and other competitive exams. Before starting the video, we have a very important announcement for you. We are starting the new batch from 21st of April 2023. Dear aspirants, we are known for best content for HPGK and consistent result from last 5 years. Along with that, we are providing you feasible fee structure, lecture in bilingual form and recorded lecture along with full study material and test series. For more information, you can contact us on this number. Okay, let's start the video. The first question is, consider the following statement about Mission Shakti. It is a scheme of the Ministry of Home Affairs. It aimed at strengthening intervention of women's safety, security and empowerment. Which of the statement given above is correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 and nor 2. Mission Shakti is an initiative of Women Child Development Ministry. Okay, first statement is incorrect, second statement is correct, B is the right answer. Okay, it is an integrated umbrella scheme of Ministry of Women and Child Development. मिशन शक्ति के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, फर्स्ट इज संभाल और सेकंड इज समर्थ्य. संभाल includes safety and security of women. Samarthya means empowerment of women. ओके, संभाल जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन हेल्पलाइन और हमारे जिस तरह से सेफ्टी के जितने भी इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो हमारे संभाल कंपोनेंट के अंदर आते हैं. और समर्थ्य के अंदर उज्ज्वला स्कीम्स जैसी या वर्किंग विमेन हॉस्टल जैसे जो इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इसके अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement about Unang festival. It is an hunting festival followed by the Adi tribal men. It is the first festival of Adi New Year. Statement हमसे करेक्ट पूछी है, इसमें वो स्टेटमेंट आ करेक्ट. आदि जो कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश की, सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश की, उसके द्वारा यूनाइंग फेस्टिवल्स हमारा सेलिब्रेट किया गया और ये न्यूज में था. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. अरुणाचल प्रदेश से ये संबंध रखता है यूनाइंग फेस्टिवल और ये स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करती है आदि कम्युनिटी, जिसमें न्यू ईयर ऑफ आदि कम्युनिटी के तौर पे ये हमारा यूनाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है. थर्ड क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. इट इज द एनुअल flagship event of UNEP. It is the only summit on the global issue taking in the developing world. जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो हमारा जो टेरी ऑर्गेनाइजेशन है या टेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज incorrect and second statement is correct. Option B is the right answer. It is the annual flagship event of the Energy and Resource Institute. एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये फ्लैगशिप इवेंट है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निपुण भारत मिशन. निपुण भारत मिशन. The mission has been launched under the aegis of Samagra Shiksha scheme. Okay, second is it focuses on
providing access and retaining children in the foundation year of schooling. Which of the above statement is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and nor 2. Option C is the right answer. फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को एनहांस करने के लिए समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर ये निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, ग्रेड 3 तक पहुंचते पहुंचते चिल्ड्रन को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में उनकी जो निपुण भारत के थ्रू एंश्योर की जाएगी उनकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी. ओके, इसमें हम याद रख सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें कुछ पार्ट सेंटर का रहेगा और कुछ हमारा जो पार्ट है वो स्टेट का रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशंस में. लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो पूरी तरह से जो सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके द्वारा हमारी फंड की जाती है. तो हमारा निपुण मिशन समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. रीड प्लस जो इनिशिएटिव है उसकी बात हम कर रहे हैं. इट इज ए मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. UNFCCC की बात करी गई है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रीड इज टू reduce emissions from the deforestation and forest degradations. Both statements are correct. Option C is the right answer. Sixth question, consider the following statement about E-Shram portal. It is an initiative of Niti Aayog. Second is, it is used for enrollment, registration, collection and identification of required data of all unorganized worker. Which of the statement is given are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. नीति आयोग का इनिशिएटिव ये नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर जो मिनिस्ट्रीज है उसका इनिशिएटिव है. देन फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. सेकंड बी इज द राइट आंसर. ई-श्रम पोर्टल, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज. ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो हमारे माइग्रेंट वर्कर रहेंगे उनका नेशनल डेटाबेस है वो क्रिएट किया जाएगा और उनको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए कोई स्कीम ला सके या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके. सेवंथ क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023? तो ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कोची. तो मुंबई के द्वारा ये SCO फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया गया. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इसमें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने भी वहां पे पार्टिसिपेट करा. ओके, एट्थ क्वेश्चन है, विच द इंडियन सिटी एंड यूटी लॉन्च द लाडली बहिना स्कीम? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा. तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहिना स्कीम लॉन्च की गई. अब इसके बारे में कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसमें 1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा जो फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड की विमेन है. और लाडली बहिना स्कीम जो बेनिफिट करेगी पुअर विमेन को फ्रॉम लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिली ऑफ ऑल सेक्शन ऑन द लाइन ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम्स. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का ये लॉन्च करेगा. ओके,
इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनियन बजट के कितने दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, तो अ डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है। 10th क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगमोहन स्टेट दैट द स्टेट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड टू विच सिटी, किस सिटी में हमारी जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो रही है? ऑप्शन ए करनौल, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी गुंटूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो विशाखापट्टनम है वहां पे हमारी अमरावती से इनिशियल जो कैपिटल थी वहां पे शिफ्ट हो रही है। 11th क्वेश्चन, मिस्टी विच वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड, जो मिस्टी है इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा किस फील्ड से रिलेटेड है? ऑप्शन ए मैन होल क्लीनिंग, ऑप्शन बी मैंग्रोव प्लांटेशन, ऑप्शन सी मोटर व्हीकल, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। तो मैंग्रोव प्लांटेशन है कोस्टल रीजन्स में, उससे रिलेटेड है हमारा मिस्टी। मिस्टी की अगर हम फुल फॉर्म देखें, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसमें जो मनरेगा है या कैंपा है उन स्कीम्स को कन्वर्ज करके एक लाइवलीहुड एंश्योर किया जाएगा जो हमारी कोस्टल कम्युनिटी है, और मैंग्रोव की प्लांटेशन की जाएगी। 12th क्वेश्चन है, हु आर द बेनिफिशियरी ऑफ पीएम विकास स्कीम अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी, आर्टिशंस के लिए हमारी पीएम विकास योजना शुरू करी गई। अब इसकी फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनको स्किल्ड प्रोफेशंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और अवार्ड देगा। 13th क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री along with the Ministry of Social Justice and Empowerment implements the नमस्ते स्कीम? नमस्ते स्कीम्स, इसमें एक मिनिस्ट्री दी गई है हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेकंड मिनिस्ट्री की बात करी गई है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलके ये जो नमस्ते स्कीम है उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब इसकी अगर फुल फॉर्म देखें, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन एंड इकोसिस्टम। जो सैनिटेशन वर्कर हैं ये उनको वहाँ से एलिमिनेट करके मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इन इकोसिस्टम वहाँ पे लाया जाएगा। 14th क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक इज ऑब्जर्व इन विच सिटी इन इंडिया ड्यूरिंग विच मंथ? कौन से मंथ में है? तो फरवरी में ये इंडिया एनर्जी वीक लॉन्च करा गया। इस इनिशिएटिव में इंडिया ऑयल अनबॉटल्ड इनिशिएटिव, इंडिया एनर्जी वीक में इंडिया ऑयल्स अनबॉटल्ड इनिशिएटिव जो पॉलिस्टर है उसको रिसाइकल करके यूज करने के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। 15th क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? तो दुबई के द्वारा होस्ट किया गया और वहाँ के जो प्रिंस हैं उनको गवर्नमेंट इनिशिएटिव में एक्सीलेंस अवार्ड प्रोवाइड किया गया। 16th क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ई संजीवनी जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, वो लॉन्च किया गया। नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी इसका दूसरा नाम है, जिसमें डॉक्टर्स और पेशेंट के द्वारा ऑनलाइन एंगेजमेंट होगी। इसमें जो पेशेंट है वो कंसल्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस के बारे में डॉक्टर से ऑनलाइन। ओके। 18th क्वेश्चन है, एक्साइज धर्मा गार्डियन इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्साइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जापान और इंडिया में
ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है वो अभी हेल्ड हुई है। 19th क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 ऑब्जर्व? तो 21 फरवरी को ये हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हुआ और ये प्रमोट करता है हमारी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। 20th क्वेश्चन है हमारा, अमसार एक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आर्कियोलॉजी से ये हमारा एक्ट है अमसार एक्ट, और रिसेंटली जो डेफिनेशन है आर्कियोलॉजी की कि 100 ईयर ओल्ड जो मॉन्यूमेंट्स हैं या साइट्स हैं वो हमारी इसमें इंक्लूड होंगी, उसको रीडिफाइन किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।